السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، کئی لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے ہمارے پاس، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل، بے خوف چینل جو ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، تو پلیز آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا گیا ہے۔ پلیز اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ اس چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں نے گزشتہ کل ہی بتایا تھا کہ ارنب تو گئو۔ جی، ریپبلک ٹی وی جو بڑا چیختا ہے، بڑا چلاتا ہے اور پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول بناتا ہے اور دلالی کرتا ہے ستہ کی گود میں بیٹھ کر، اس ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر کو بھی ممبئی پولیس کا سمن مل گیا ہے۔ پردیپ بھنڈاری پر انہدامی کارروائی کے دوران فلم اداکارہ کنگنا رناوت کے بنگلے پر بھیڑ جمع کر کے ماحول خراب کرنے کی سازش کا الزام بھی آیا ہے۔ ریپبلک ٹی وی چینل کی پریشانیوں میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ ممبئی پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر کو بھی سمن جاری کر کے بیان درج کرانے کے لیے طلب کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کھار میں واقع فلم اداکارہ کنگنا رناوت کے بنگلے کے باہر ریپبلک ٹی وی نے ہی بھیڑ جمع کیا تھا۔ وہیں پر ریپبلک ٹی وی کے چیف فائنانس افسر کو کرائم برانچ میں بیان درج کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ سشانت کی موت کی غلط خبر، گمراہ کن رپورٹنگ کرنے پر دلی ہائی کورٹ میں ارنب گوسوامی کے خلاف مفاد عامہ کی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا ہے، اس لیے میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ارنب تو گئیو۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، اتر پردیش اسمبلی ضمنی الیکشن کو لے کر۔ جی ہاں، 7 سیٹوں کے الیکشن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 16 اکتوبر کو پرچہ داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے، اور ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ 17 اکتوبر کو پرچے کی جانچ کی جائے گی اور 3 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، پولنگ ہوگی اور 10 نومبر کو گنتی ہوگی۔ اتر پردیش میں اسمبلی کی 7 سیٹوں پر آنے والے 3 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے گزشتہ کل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے بعد نامزدگی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اس منی اسمبلی الیکشن اور 2022 کے اسمبلی الیکشن سے پہلے سیمی فائنل سمجھے جانے والا اس ضمنی الیکشن میں 4 رخی مقابلے کے قوی امکانات ہے۔ تمام سیٹوں پر بی جے پی، سماجوادی، ایس پی، بہوجن سماج پارٹی، کانگریس نے اپنے علیحدہ امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ناظرین، ہاتھرس کی دلت بیٹی منیشا کو لے کر اس وقت انصاف کے لیے زبردست انداز میں پورے ملک میں دھرنے آندولن شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کل مسلم کونسل ٹرسٹ کی جانب سے ہاتھرس کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے ممبئی کے بھنڈی بازار جنکشن پر بھی خواتین نے زبردست انداز میں آندولن کیا اور اس جنکشن پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ کافی تعداد میں ممبئی پولیس بھنڈی بازار جنکشن پر موجود تھی۔ بتا دوں کہ مسلم کونسل ٹرسٹ کے صدر جناب ابراہیم تائی نے اطلاع دی کہ گزشتہ کل یعنی جمعہ کے شام 4 بجے ہاتھرس کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اور ظالموں کو پھانسی کی سزا دلانے کے لیے بالکل دھرنے آندولن دیا جانے والا ہے، جس کو لے کر گزشتہ کل کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ویلفیئر پارٹی کے وفد نے ہاتھرس کا دورہ کیا اور اس پیڑت بیٹی کے خاندان سے ملاقات کی
उनको ढारस बंधाई और हर मुमकिन मदद का वादा किया। वहीं पर तीस्ता सतलवाद जो एक समाजी मशहूर समाजी कारकुन हैं, उन्होंने भी कहा कि हाथरस सानेह की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हाथरस गैंगरेप के ताल्लुक से यूपी पुलिस ने यह दावा किया है कि मुतासरा को इंसाफ दिलाने की आड़ में फसाद की साजिश थी। यानी यूपी हुकूमत बौखला हुई है और मामले को किसी भी तरीके से गलत रुख देने की कोशिशें कर रही है, ऐसा लोगों का और अपोजिशन पार्टियों का मानना है। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड या किसी भी तरीके की फिल्मी जिंदगी में जो गंदगियां हैं, बहुत सारे लोग कभी ना कभी समझ जाते हैं और अल्लाह उन्हें हिदायत और तौफीक दे देता है और वो फिल्मी इंडस्ट्री से यूँ समझिए कि रिवर्स आ जाते हैं। ऐसे ही एक बिग बॉस फेम जो बिग बॉस में बड़ी मशहूर हुई थी, एक नौजवान बेटी सना खान, इसने मजहब इस्लाम के लिए बॉलीवुड को छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और इस वक्त वो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों पर राज करती हुई नजर आ रही है। और इस बेटी सना खान ने साफ तौर से ये कहा कि मैंने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा कि मुझे समझ में आ गया कि मैं गलती पर हूँ और जिंदगी असल में मरने के बाद शुरू होती है। सना खान के इस फैसले से एक हल्का तो खुश है तो एक हल्का ऐसा भी है जिसने उन पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया, क्योंकि कई नंगे लोग और हवस के पुजारी दरिंदों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है जो उनकी बेटियों को भी नंगा करने से नहीं उबते हैं, या उनकी बेटियां नंगे होकर बॉलीवुड में भी अगर काम करे या मॉलीवुड में काम करे या कहीं पर भी काम करे तो बेटियों का नंगा होना जिनके लिए एक पब्लिसिटी का जरिया बनता है, ऐसे नंगे लोगों को सना खान के सुधरने से बड़ी तकलीफें हो रही है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर सना खान की जो हिजाब वाली फोटोज है, हिजाब वाली तस्वीरें हैं, ये इस वक्त धूम मचा रही है। नाज़रीन, आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि लालू को जमानत तो मिली लेकिन 9 नवंबर से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मशहूर चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी लीडर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत तो मिली है लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाने की वजह से बिहार असेंबली इलेक्शन में अपने लीडर की मौजूदगी की राह देख रहे आरजेडी के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस कुमार की अदालत ने आरजेडी के सदर मिस्टर यादव की जानिब से गैर कानूनी निकासी मामले में दायर की गई जमानत की अर्जी पर जुमा को समाअत के बाद उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन अदालत ने मिस्टर यादव को जेरी अदालत में 2 लाख रुपए जमा करने और रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 6 नवंबर तक मिस्टर यादव की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कराने की हिदायत दी है। यानी 9 नवंबर से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की फिर शर्मनाक खबर सामने आई। वैसे कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन योगी राज में कोई शर्मनाक हरकत ना हो। तो खैर, अभी बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर के ललोली इलाके में एक लड़की के साथ फिर गैंग रेप, इज्तिमाई इस्मतदरी का मामला सामने आया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रशांत वर्मा ने जुमा को बताया कि ललोली इलाके के एक गाँव में 18 साल की बेटी जुमेरात की शाम को क़ज़ाए हाजत के लिए घर से बाहर गई थी। इस दरमियान पहले से ही घात लगाए 2 अफराद ने उसे दबोच लिया और उसके साथ इस्मतदरी की। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान मुतासरा बेटी को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। जब लड़की होश में आई तो उसने अहले खाना से पूरी आप बीती सुनाई। अहले खाना उसे लेकर थाने पर गए और FIR दर्ज करवाई। मुतासरा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। मिस्टर वर्मा ने बताया कि इस मामले में दोनों मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर मुंबई से आई है। जी हाँ, मुंबई में जो लोगों के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, लोकल ट्रेन। जी हाँ, जिस लोकल ट्रेन से कई ट्रेनें चलती है और ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, वो लोकल ट्रेन 7 महीने से बंद थी, लेकिन अब लोकल ट्रेन को शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। यानी लोकल ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी की जाए तो महाराष्ट्र सरकार को कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं है। बम्बई हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया है।
मैं आपको बता दूं कि काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल करदा एक रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल आशुतोष ने रियासती सरकार की तरफ से एक जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए अदलिया को मुत्तला किया कि शहरियों को कोरोना वबा से लड़ते हुए तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। इस दौरान रियासती सरकार की जानिब से तमाम सहूलतें बहाल की जा रही है, माशी सरगर्मियों को भी रफ्तार देने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आई है मुंबई से, यानी गोया कि यूं समझिए कि रियासत महाराष्ट्र से, कि MPSC के इम्तिहानात आखिर मुलतवी कर दिए गए। यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। मराठा रिजर्वेशन की मांग करने वाले मराठी क्रांति मोर्चा समेत दीगर तंजीमों की शदीद मुखालिफत के बाद गुज़िश्ता कल रियासत की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC के इम्तिहानात जो 11 अक्टूबर से यानी आज आइंदा कल से मुनक़िद होने वाले थे, इन इम्तिहानात को मुलतवी करने का आखिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया। दरियासना महाराष्ट्र के वजीर हाई टेक्निकल एजुकेशन उदय सामंत ने कहा कि रियासती सरकार यूनिवर्सिटियों के ऑनलाइन इम्तिहानात को बेहतर तरीके से मुनक़िद कराने के लिए पुरअज़म है और इम्तिहानात में कोई तकनीकी परेशानी पैदा नहीं होगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि रियासत राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जलाने का वाक़या सामने आया है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुलज़िमीन की इस मामले को लेकर तलाश जारी है। वज़ीर आला राजस्थान ने इस मामले में पर नोटिस लिया और वसुंधरा राजे ने इस मामले की मजम्मत की, निंदा की। खैर, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के क्रोनी ज़िले में एक पुजारी बाबूलाल वैष्णो को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। पुजारी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। वज़ीर आला राजस्थान अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके कहा कि पुजारी बाबूलाल का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जाता है कि कत्ल की ये वारदात ज़मीन पर कब्ज़े की साजिश के नतीजे में रूनुमा हुई है। मौत से पहले उन्होंने पुलिस को बताया कि कैलाश मेहता नामी शख्स अपने साथियों के साथ मंदिर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके छप्पर लगा रहा था। मैंने मुज़ाहमत की तो मुझे जला दिया गया। आइए नाज़रीन, खैरियत मालूम करते हैं प्यारे मुल्क में कोरोना का क्या हाल है और कोरोना की वजह से प्यारे मुल्क का क्या हाल है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 80,000 के करीब का आंकड़ा तो 24 घंटे में सामने आ ही रहा है। और अब ये भी खबरें आ रही है कि आने वाला सर्दी के मौसम में कोरोना कहर बर्पा कर सकता है और मज़ीद बड़ी तादाद में कोरोना से लोग और मुल्क मुतासिर हो सकता है। खैर, इस वक्त कोरोना की खैरियत को लेकर रियासत महाराष्ट्र के परभनी और कल्याण, डोंबिवली और थाने की कुछ खबरें आ रही है। रियासत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के ज़िला परभनी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 65 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ऐसे ही कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन से रिपोर्ट आ रही है कि इस 24 घंटों में 367 यानी 367 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं और डोंबिवली में 141 यानी 141 और यूँ समझिए कि कल्याण में 215 यानी अब तक इस इलाके में 890 मरीज कोरोना से शिकार हुए हैं। वहीं पर रियासत महाराष्ट्र के थाने शहर थाने इलाके से भी खबरें आई है कि कोरोना के मरीजों में फिर इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1515 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 47 लोगों के मरने की खबर है। तो थाने कल्याण डोंबिवली में और नई मुंबई में भी 330 की खबर है। भिवंडी में भी 31 अफराद के मुतासर होने की खबरें सामने आई है।